हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं जब चार्ज प्रवाहित होता है, व्हेन चार्ज फ्लो, तो हम कहते हैं कि धारा बह रही है, करंट इज फ्लोइंग। अब करंट कैसे हम डिफाइन करेंगे करंट? तो एक्चुअली थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन in 1 second, the magnitude of the charge is current. Any flow of charge through any cross section of a conductor per unit time is current. यूनिट टाइम में जितना चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास हो जाता है, दैट इज करंट। तो करंट इज इक्वल टू Q/T, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। लेकिन यहाँ पे करंट किसी कंडक्टर में जो फ्लो करती है, तो हाउ द करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। लेट अस नो अबाउट द कंडक्टर। वी नो दैट इन कंडक्टर्स देयर आर lakhs and lakhs free electrons randomly moving in every directions. This is a conductor. Suppose this is a conductor. In conductor, the electrons are moving very rapidly, that is the speed is very high, 10 to the power 5 meter per second. They collide with the ions or atoms and they thus move in other direction, and this way they move in random direction. This movement is due to temperature, and therefore this is thermal motion. This is thermal motion. Of this thermal motion is in every direction. Suppose there are n electrons, and then average velocity of this thermal motion is 0. The average velocity is 0. The average velocity, thermal velocity is for n electrons is 0. Though if you consider one electron that is moving, but if you calculate all the motions of all the electrons, the net displacement or net velocity is 0. It means the flow of charge is 0. It means the current is 0. So in a conductor, there is, though the free electrons are moving randomly, but the current is 0, right? तो करंट इसमें 0 रहती। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, कभी जल्दी कोलाइड कर लेते हैं, कभी देर में करते हैं, कभी थोड़ी दूर चलते हैं, कभी ज़्यादा दूर चलते हैं। तो दिस डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, अगर उसका एवरेज लेते हैं तो दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ, लैम्डा। मीन फ्री पाथ is the average distance between two collisions. Average distance, sometimes it is large or sometimes it is small. Between two collisions, the time taken between two collisions is known as relaxation time, tau. This is the average time between two collisions. अब if we apply a potential difference at the ends of the conductor, अगर इसके हम कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, the force, electric force acts on the electrons because electrons have negative charge, and therefore the force on the electron is opposite to the electric field. Electric field is in this direction, and therefore the force is in this direction. The force on the electrons is in this direction, opposite to the electric field, and due to this force the electrons are accelerated. The electrons are accelerated. So one velocity is thermal velocity, and on the thermal velocity this another acceleration is superimposed on this velocity, and therefore
So by and by, they move opposite to the electric field very slowly. They move, collide, velocity becomes zero, again accelerate, collide, again velocity becomes zero. In this way, slowly they move towards the left direction, that is opposite to the electric field, and this small velocity is known as drift velocity. यानी constant average velocity of free electrons due to applied electric field at the ends of a conductor. At the ends of a conductor हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई है उसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स में जो वेलोसिटी ये एक्वायर करते हैं, दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज द ड्रिफ्ट विज दिस वेलोसिटी अगेंस्ट दिस एनी अपोजिट to the electric field. Here we know that the electrons move in straight line. They move in straight lines, collide, then turn their direction, again move, collide. They move in straight line. But here, when electric field acts on them, they do not travel in straight line, but they move in parabolic path. And in this way, colliding and moving, they forward towards the left, that is opposite to the electric field. Now let us calculate this drift velocity with which this electron move in the conductor, and due to this movement of the electrons, the electric current flows in the conductor. Force on the electron is equal to electronic charge and electric field, and therefore acceleration of the electron, force upon mass of the electron minus E upon m, f की वैल्यू रख दी. This is negative direction, therefore this is minus, and therefore the magnitude of the acceleration is E upon m. Suppose we consider after the last collision. After the last collision, एक collision किया, after a last collision, at any instant, the acquired velocity of one electron of thermal velocity u1. Suppose there are n electrons and the thermal velocity of one electron, any one electron is suppose u1. So the thermal velocity is u1, therefore the total velocity, acquired velocity कितनी हो जाएगी? थर्मल वेलोसिटी पर ही एक्सेलरेशन इम्पोज हो जाता है. Therefore the total velocity of the electron having thermal velocity u1 is v1. v1 is equal to e1, a is acceleration, और tau1 is the time after the last collision. सिमिलरली कुछ सेकंड कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ये हुआ एक्सेलरेशन तो वही रहा, लेकिन उसकी थर्मल वेलोसिटी u2 है. इसी तरह से मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी. अब ये जो t1, tau1, tau2, tau n हमने सबको जोड़ दिया. जो ये v1, v2, vn है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है, that is drift velocity. यानी drift velocity is the average acquired velocity by the electrons, and this is the acquired velocity. तो v1, v2, vn upon n, this is the acquired average velocity, and this is known as drift velocity. अब इसमें हमने वैल्यू रख दिया v1, v2 की, तो u1, u2, u1 ये जुड़ेगा और इसको n से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ से n से डिवाइड है. फिर ये जुड़ेगा, इसमें a सब में कॉमन है और इसलिए tau1, tau2, tau1 upon n. This is thermal velocity, the average of the thermal velocity 0. तो ये तो 0 हो जाएगा. ये आपका यहाँ बचा, a का वैल्यू रख दिया. The magnitude of a is E upon m, और ये इसका एवरेज आया टाउ
विच इज़ नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया ई टाउ अपान यम, एंड देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई टाउ अपान यम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर जो टाउ 1, टाउ 2, टाउ n है, दिस इज द टाइम इंटरवल आफ्टर द लास्ट कोलिजन। लास्ट कोलिजन के बाद ये टाइम है, ये पहले के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, दूसरे के लिए टाउ 2 है और एक के लिए टाउ n है। और व्हेन वी जस्ट कैलकुलेट द एवरेज, that is equal to the relaxation time, that is the time, average time after the last collision। ये तो हो गया हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, देयर आर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। वन चार्ज कैरियर electrons in solid conductor, the free electrons are the charge carrier, they carry the charge, they are charge carriers. In liquids, the positive and negative ions are the charge carriers, there are two charge carriers, positive and negative ions are charge carriers. In semiconductors, electrons and holes are the charge carriers. In gases, ion and electrons are the charge carriers. तो there are number of charge carriers. उन charge carriers की मोबिलिटी किसे कहते हैं? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो मोबिलिटी कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूनिट लगाए, इसके सिरों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगे दैट इज यूनिट 1 न्यूटन पर कूलम, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is mobility. That drift velocity is called mobility. तो mobility is the drift velocity per unit electric field is the mobility of the charge carrier. अब वो चार्ज कैरियर कुछ भी होगा, इसीलिए यहाँ पर इस सूत्र में आप देखें बी डी इक्वल टू ई टाउ अपान एम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बी डी अपान ई। यहाँ आप देखें बी डी अपान ई इक्वल टू ई टाउ अपान एम। क्योंकि चार्ज कैरियर हमने लिया तो ई की जगह हमने क्यों रखा? क्योंकि ई तो केवल इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के चार्ज के लिए प्रयोग होता है, लेकिन चार्ज कैरियर तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इन प्लेस ई हमने रखा क्यू टाउ अपान एम। दिस इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ electronic average is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Electric field is 2 volt per meter, and mass of the electron m is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. And tau relaxation time is given 1.82 into 10 to the power minus 14 second. Also find the mobility of the electron. तो the drift velocity Vd is equal to e tau upon m। सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, e की वैल्यू दी है, वो v का दिया है और ये दिया है रिलैक्सेशन टाइम का। इससे ये कट जाएगा, इसका ये 0.2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसका दशमलव यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब मोबिलिटी फॉर मोबिलिटी भी नो, मोबिलिटी इक्वल टू बी डी अपान ई। बी डी को हमने कैलकुलेट कर लिया, ई की वैल्यू दी हुई है, रख दिया। दिस इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम सेकंड पर किलोग्राम। करंट इलेक्ट्रिसिटी का
हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सपोज देयर इज अ कंडक्टर ऑफ area of cross section A and length L. The electron density, that is the electron per unit area, is N. Volume of the conductor is L into A, and therefore the total number of electrons in the conductor is ALN. The charge of electron is E, and therefore the total charge in the conductor is equal to ALNE. If electric field is applied, then due to the drift velocity, the electrons move against the electric field. Suppose the drift velocity is Vd, length is L, therefore the total time taken by the electrons to cross this length L is L by Vd. तो जब electrons cross this length, it means the charge passes through this length. Hence the current is equal to the total charge and the time t. T is equal to L upon Vd, because the charge, or you can say electrons, are moving with this velocity Vd. Divide L and L cancels away, and I is equal to ANE Vd. This is the relation between current and drift velocity. Now we know the relation between the mobility and the drift velocity. For electrons, because these are the electrons, the mobility of the electrons is Vd upon E. Now Vd is equal to mu E into E. इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया Vd की जगह, तो अनदर रिलेशन बिटवीन I एंड मोबिलिटी. Vd का की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड E इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. Vd की वैल्यू अगर हम रख दें नंबर 1 में, तो एक दूसरा रिलेशन भी हमको मिल जाएगा, ANE स्क्वायर E टाउ अपॉन m. So these are the relations between current and drift velocity, current and mobility, current and relaxation time. Now Ohm's law. Ohm's law हम हमेशा से पढ़ते रहे. Ohm's law कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट. कोई भी कंडक्टर हो, उसकी फिजिकल कंडीशन न बदलें, उसकी लंबाई न खींच दें, उसकी मोटाई यानी क्रॉस सेक्शन न चेंज कर दें, उसका टेंशन न बदल दें, उसकी डेंसिटी न बदलें, उसका टेम्परेचर न चेंज करें, यानी फिजिकल कंडीशंस जो हैं दैट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, देयर नो चेंज. द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट. द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. इसके सिरों के बीच जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और जो करंट बह रही है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं. I proportional to V, or you can say V proportional to I, or V is equal to Ri. Therefore R is equal to V upon I, where R is a constant. R is constant, and this is the Ohm's law. For Ohm's law, V upon I must be constant. Then this is Ohm's law. V upon I upon R तो कहीं भी हो जाएगा ये, वो ओम के नियम का पालन करे या ओम के नियम का पालन ना करे, लेकिन V अपॉन I रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस. बट व्हेन इट इज कांस्टेंट, इट मीन्स इट फॉलोज द ओम्स लॉ, वेयर हियर आर इज a resistance of the conductor. अब व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को किस तरह से हम समझते हैं? रेजिस्टेंस द ऑब्स्ट्रक्शन presented by the conductor to the flow of current through the conductor. किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट बहती है, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, तो उसके रास्ते में बाधा आती है. दैट ऑब्स्ट्रक्शन, दैट बाधा, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस, एंड दैट इन मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू V अपॉन I. नाउ यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज वोल्ट
per ampere. Volt per ampere is named as ohm, represented by this symbol omega. This is ohm. Dimension, volt is work पर यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज को ले आने में होने वाले कार्य को ही वोल्ट कहते हैं. तो W/Q इंटू एम्पियर. Q इक्वल टू एम्पियर इंटू टी, तो ये हो गया एम्पियर स्क्वायर टी. W बराबर यम यल स्क्वायर टी माइनस टू. इन सबको ऊपर ले जाइए तो यम यल टी माइनस थ्री ए माइनस टू. दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस. For Ohm's law, this graph curve between V and I is always a straight line because the ratio of the V is always constant. So this is the for Ohm's law. When it is straight, it means it follows Ohm's law. If it is not straight, then it does not follow the Ohm's law. But V/I is equal to resistance, but that is not constant, that varies. So this is the Ohm's law, and this is the relation between drift velocity and the current. That's डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. हम लोगों ने ओम्स लॉ इसके पहले पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो उसमें बहने वाली करंट और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होते हैं. उसको हम इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी हम इसको निकाल सकते हैं. वी हैव रेड Vd इक्वल टू ई टाउ ई अपॉन एम एंड द इंटेंसिटी इक्वल टू V upon L. V upon L is an intensity. Current AEN, this is the electron density into drift velocity. अब इसमें अगर हमने drift velocity की वैल्यू इससे रख दी ई टी ई और टाउ ई अपॉन एम, तो ये आ जाएगा. और इन प्लेस ऑफ ई हमने रख दिया V अपॉन L. तो हमारे पास से फार्मूला आ गया V इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल इंटू आई. ओम्स लॉ में भी हम जानते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू आई. हियर ए एन ई स्क्वायर टाउ एम एल ये किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस हैं. ये इज द क्रॉस सेक्शन, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट volume. This is electronic charge which is constant. This is relaxation time. Relaxation time माने the time between two collisions. This depend upon the temperature. If the temperature of the conductor is constant, then this is a constant. M is the mass of electron, that is constant. L is the length of the conductor, which is constant. So this is a constant, and this constant is known as resistance of the conductor. Therefore V इक्वल टू आर आई. ये ओम्स लॉ है. फिर R इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल विच इज कॉन्स्टेंट फॉर ओम्स लॉ. इस ओम्स लॉ को ये जो हमने निकाला, इस R जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. The resistance है that is the property of a conductor, any conductor. But resistivity or specific resistance is not the property of the conductor, but the property of the material of the conductor. जो मटेरियल है, जो वायर ले रहे हैं उसका जो मटेरियल है, कॉपर है का है कि सिल्वर का है कि वो ये किसी एल्युमिनियम का है, किस चीज़ का बना हुआ है, उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है. We know that resistance of any conductor is directly proportional to the length of the conductor. Length जितनी बढ़ जाएगी उसका resistance उतने ही बढ़ जाएगा. If its thickness increases,
देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अगर हम मिला दें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपान A विच इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L अपान A। रो इज ए कांस्टेंट एंड दिस इज नोन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल का वो हमने लिया है, वायर लिया है, उस मटेरियल की ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहलाती है। रो इक्वल टू R A अपान L। इसकी यूनिट क्या होगी? R का ओम है, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर आएगा। दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। डायमेंशन निकालने के लिए ओम का डायमेंशन हम लोगों ने इसके पहले निकाला हुआ है। ओम का डायमेंशन M1, L2, T-3 और A-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ दी ओम दैट इज रेजिस्टेंस। ओम रेजिस्टेंस, मीटर और हमने लिख दिया L, तो यह आ जाएगा M1, L2N1 3, T-3, A-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या चीज़ है? हाउ वी डिफाइन इट? इट इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल की हम यूनिट लेंथ लें, उसकी हम यूनिट लेंथ को ले लें, यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ लें हम यूनिट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने यूनिट ले लिया। दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर स्क्वायर। देन इट्स रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। इट मीन्स इट इज फिक्स। सपोज हमारे पास एक बहुत लंबा वायर है, इतना बड़ा वायर है, इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी? तो इसकी रेसिस्टिविटी इस वायर की लंबाई पर निर्भर नहीं करती या इसके थिकनेस पर निर्भर नहीं करती, वो निर्भर करती है कि इस मटेरियल से ये बना हुआ है। तो इसका यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ आप ले लें, उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लें, दैट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। तो इसलिए रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और एरिया, दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। देयर इज अनदर क्वांटिटी sigma which is equal to 1 upon rho. Rho is resistivity and sigma is conductivity of the material. This is conductivity of the material. This is conductivity of the material. Conductivity of the material is inverse of the resistivity of the material. इसका है ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा मो मीटर इनवर्स, 1 अपान हो जाएगा। तो 1 अपान ओम का में जो इनवर्स लिखा है वो MHO मो कहते हैं, तो मो प्रति मीटर। और इसका जो अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे, क्योंकि नीचे आ गया तो M प्लस है तो M माइनस हो गया, M प्लस है तो M माइनस हो गया, T माइनस है तो T प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। ठीक उसका उल्टा है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इन द फ्लो ऑफ करंट, और उसका जो इन्वर्स होता है वो होता है कंडक्टेंस G, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन R, द यूनिट इज ओम इनवर्स। तो दिस इज अबाउट द रेसिस्टिविटी। नाउ वी हैव जस्ट deduce this Ohm's law. This Ohm's law is also deduced in another form. Here we know that sigma is equal to 1 upon rho, and rho is equal to RA upon L. इसलिए 1 upon rho is equal to L upon RA. तो 1 upon rho is equal to L upon RA मल्टीप्लाइड बाई V इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया
तो L upon B into V upon R into A. V upon L is E. V upon L is E, and therefore L upon B is 1 upon E. तो L upon B is 1 upon E. V upon R is equal to I. V is equal to IR and V upon R is equal to I. So this is equal to I and this is A. This is E. I upon A is current density. This is current density J. So this is equal to J upon E, and therefore J is equal to E sigma R sigma E. This is also a form of Ohm's law. Effect of temperature on resistance or resistivity. दोनों के जो फार्मूले हैं एक जैसे ही हैं, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इसलिए RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर RT इज द रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T. R0 is the resistance at 0 temperature. Alpha is the temperature coefficient of resistance or resistivity. Delta T is the temperature difference. Here also this is the resistivity at temperature T at temperature 0, and this is the temperature coefficient. Up for metals, because alpha is positive in both the cases, alpha is positive, and therefore resistance and resistivity increases with increase in temperature. If temperature rises, the resistance and resistivity both are increased. Alloys, there are number of alloys we use. For example, constantan, मैग्नीन, नाइक्रोम, ये जो हमारे एलॉयज हैं, मैग्नीन है, मैग्नीन, यूरेका है या कांस्टेंटन है, ये सब जो एलॉयज हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है दैट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, and therefore due to temperature there is a small change. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा तो इनकी वैल्यू में चेंज होता है, नहीं तो ज़्यादा चेंज नहीं होता. एंड therefore these are used for standard resistances. जो हम रेजिस्टेंस बनाते हैं, रेजिस्टर लगाते हैं जगह जगह, फॉर एग्जांपल हीटर इन आयरन, तो जो उनके एलिमेंट्स बनते हैं वो इन्हीं आपके यूरेका हुआ, मैग्नीन हुआ, यूरेका, तो यूरेका हुआ, मैग्नीन हुआ, इन्हीं सब के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके रेजिस्टेंसेस जब करंट बहती है तो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता. सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है दैट इज़ नेगेटिव. इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव होने के कारण जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करता है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके रेजिस्टेंसेस कम हो जाते हैं, इंसुलेटर्स के भी और सेमीकंडक्टर्स के भी. दो सेमीकंडक्टर्स में द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ करता है, लेकिन जिस रेशियो में चार्ज कैरियर इंक्रीज़ करता है उससे ज़्यादा रेशियो में उसका जो अल्फा की वैल्यू घटती है. इसीलिए बोथ द केसेस, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, दीज आर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. फॉर एग्जांपल ये वुड
bakelite, all these things. So their resistances decreases with rise in temperature. अब we have read Ohm's law. Ohm's law में V upon I is equal to R, और which is constant. This is Ohm's law. For Ohm's law, V upon I, which is equal to resistance, or that resistance must be constant. This is Ohm's law. So in this case, if we draw a graph between V and I, a straight line is obtained. This straight line represents that this is a ohmic circuit. Ohmic circuit में जो रेजिस्टेंस रहता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. बीच बैरी करेंगे, आई बैरी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसका रेशियो वही आएगा. इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, इसका रेशियो वही आएगा. दिस विल रिमेन कांस्टेंट. तो दिस इज कॉल्ड ओमिक सर्किट, वेयर V upon I is constant. That is ohmic circuit. V upon I is equal to R. ये तो होता ही है. V और I का जो रेशियो आता है वो रेजिस्टेंस होता है. लेकिन जब ये कांस्टेंट नहीं है, जब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बदलती रहेगी. एंड दैट चेंजिंग वैल्यू इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस. डायनामिक रेजिस्टेंस यानी दैट रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस. देख रहे हैं यहाँ. तो V और I का जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो नॉट स्ट्रेट लाइन बट लाइक दिस. यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ कुछ और वैल्यू होगी. जगह जगह पर इसका जो झुकाव है अलग अलग होगा, अर्थात द वैल्यू ऑफ R इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. तो दिस इज नॉन ओमिक सर्किट. नॉन ओमिक सर्किट का उदाहरण डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस जितने भी हैं ज़्यादातर ये सभी नॉन ओमिक सर्किट्स हैं. इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स हैं उनमें वर्क कितना होता है. जब करंट बहती है या चार्ज चलता है कितना वर्क होगा या कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी. वी नो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी. देयरफॉर वर्क आर एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. V is the work done to displace यूनिट पॉजिटिव कूलम चार्ज. तो Q को कराएंगे तो QB हो जाएगा. तो W बराबर QB जूल. Q बराबर होता है IT, तो इसलिए होगा VIT जूल. V बराबर होता है IR, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR. तो ये हो गया I दो बार आएगा तो I स्क्वायर RT जूल. V इक्वल टू I बराबर V अपान R. ये I बराबर V अपान R, I बराबर V अपान R बराबर I रख दिया I की जगह तो आएगा V स्क्वायर अपान R. ये सभी जूल में हैं. लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनमें ये हीट में भी बदल सकता है, जो वर्क हो रहा है ये लाइट में भी बदल सकता है. तो इन द केस ऑफ हीट व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड टू हीट, तो इन द हीट यूनिट दैट इज कैलोरी, इसको 0.24 से गुणा कर देंगे. कहिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे या 0.24 से गुणा कर देंगे तो हो गया 0.24 QB. यानी इन सब को हम 0.24 से गुणा कर देंगे तो ये जो जूल में है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैलोरी. पावर इज द रेट ऑफ वर्किंग. एक सेकंड में जितना काम होता है उसे हम पावर कहते हैं. तो यहाँ पर पावर P बराबर W अपान T, T से डिवाइड कर दिया. इसको T से डिवाइड करेंगे तो इसमें T नहीं है, T इसके नीचे आ जाएगा QB बाई T. बाकी सब में T है, ये T सारे कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा VI, I स्क्वायर R, B स्क्वायर R. इनमें से कोई भी फार्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत हमको हो, जो हमको ज्ञात हो. तो ये हो गया हमारा पावर. और पावर बराबर होता है जूल पर सेकंड, एंड जूल पर सेकंड इज नोन एज वाट. तो दीज आर इन वाट. अब ये तो हो गई जब हमको पावर निकालना हो या पावर ज्ञात हो तो इसमें रेजिस्टेंस निकालना हो या वोल्टेज निकालना हो, ये सब चीज़ें जो भी निकालनी हो.
लेकिन जिस यूनिट में जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में लगी है उसका हम मूल्य देते हैं, वो भी एक यूनिट है। उसे कहते हैं किलोवाट घंटा। एनर्जी है। वाट को हमने किलोवाट में बदला क्योंकि वाट इज ए स्मॉल, वेरी स्मॉल। उसको हमने किलोवाट में कर दिया था। 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट। तो किलोवाट जो सेकंड से गुणा करते हैं, सेकंड का इस्तेमाल समय के लिए करते हैं, उसको घंटे में कर दिया तो होगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। तो ये किलोवाट घंटा गो है, इसको हम सामान्यतः यूनिट बोलते हैं, कहते हैं यूनिट है। 1 यूनिट बिजली खर्चा हुई, 2 यूनिट बिजली खर्चा हुई, लाइक दिस। तो ये हुआ किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को सामान्यतः वोल्ट में हम पोटेंशियल को नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं। तो पोटेंशियल और एम्पियर को, इसको पोटेंशियल वोल्ट इंटू एम्पियर जो होगा ये हो जाएगा वाट। इसको किलोवाट में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया किलोवाट। और घंटा, जितने भी घंटे तक हमने बल्ब को जलाया, मशीन को चलाया, टेलीविज़न चले, फ्रिज चले या अन्य मशीनें, लैपटॉप चले, जितनी भी मशीनें हमारे घरों में चलती, उन सारी मशीनों को के वाटेज को हमने यहाँ रखा तो हमको निकल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुई, कितनी यूनिट खर्च हुई। दिस इज यूनिट। तो दिस इज दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वी कैलकुलेट।